And alrighty, there we go, friends. Welcome to the Superpower Success Summit. Well, this is Itin Soni, and I'm super happy today because I have a very good friend here with me who's going to be taking today's session. दोस्तों आज का सेशन है स्पिरिचुअलिटी पर स्पिरिचुअलिटी जब ये टॉपिक दिमाग में आता है जब इस टॉपिक की डिस्कशन होती है तो कई तरह के सवाल हमारे माइंड में उठते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है स्पिरिचुअलिटी क्या है स्पिरिचुअलिटी हाउ डू वी अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी what is spirituality what to do you'll get answers to these questions today ये एक सेशन आपके लिए this could potentially be one of the most important sessions क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि if we really want to activate, listen to me carefully, if we really want to activate our full potential, it's important that we take the spiritual route. And this route is going to make you walk on a path that will help you activate your full potential. Now, this is interesting, and I am happy and excited. क्योंकि आज का सेशन it's not going to be a motivational session for you, it's going to be a session for you to reflect upon what you do, how you do it, and a lot more. दोस्तों आज का session on spirituality is going to be taken by one of India's leading spiritual and mental health coach. She's from Mumbai. We have known each other for many years now. I've seen her journey, her personal lives, and the incredible work that she does. An expert in her domain, a number one best-selling author of the book, My Path to Pradnya. I mean, I can go on, and I say all the good things about her because I can. And I want you today to relax, sit, and experience the magic of this session on spirituality as I invite none other than Leena R. Prabhu on screen. Leena, good evening. Good evening, Nitin. Thank you so much for inviting me over here and your fantastic introduction. I'm truly honored and blessed to be on the show. Thank you so much, Leena. Coming from you means a lot. अब जल्दी से थोड़ा सा तारीफ सुनना चाहता हूँ. जल्दी बताइए, how is this summit? We have taken this initiative of inviting 30 speakers for 30 days. And make this month special, right? Make this month special. We will be celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav in this month. लेकिन हमने तो इस पूरे महीने को ही special करने की ठान ली. What is your take on this initiative that we have taken on the Superpower Success Summit, Leena? Nitin, this is a fantastic initiative. और जैसे आपने कहा कि आप सिर्फ बिजनेस के बारे में ही नहीं बात कर रहे, आप लाइफ के सारे पहलू जो है उनको समेटना चाहते हैं और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आप अपने ऑडियंस तक लेके जाना चाहते हो तो ये एक फैंटास्टिक इनिशिएटिव है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को इन्वॉल्व करके आपकी टीम भी बहुत अच्छी है और वेरी प्रोफेशनल and this is the way that summit should be conducted and I'm happy to be over here and share my knowledge with your viewers. Awesome, Leena. Thank you so very much. So, Leena, today's session is on spirituality. Before I, give the stage to you and let you share your ideas, I have this question in my mind on behalf of everybody who's listening to us. What to expect from today's session? हम क्या डिस्कस करेंगे एंड व्हाई इज दिस सेशन इंपॉर्टेंट ऑन स्पिरिचुअलिटी लोग कहते हैं कि सर बिजनेस पर सेशन हो मनी मेकिंग पर हो फाइनेंस पर हो इन्वेस्टमेंट पर हो स्टॉक मार्केट पर हो और कुछ ऐसे पर हो जिसमें पैसा डायरेक्टली कनेक्टेड हो सर स्पिरिचुअलिटी पर सेशन कर रहे हैं दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक आई नो व्हाई आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू व्हाई दिस is one of the most important topics that everybody should be interested in spirituality. Let me know, Leena. Right. नितिन तो पिछले सेंचुरी में खोजा गया कि IQ होना चाहिए जिस बंदे का IQ हाई है वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा फिर कुछ डेकेड्स निकल गए और फिर पता चला कि IQ की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है पर्सन इज नॉट हैप्पी फिर उसके बाद EQ आ गया मतलब इमोशनल कोशेंट आ गया तो जिसका भी इमोशनल कोशेंट हाई है तो वो बिजनेस में और लाइफ में सक्सेसफुल होगा
तो कुछ साल निकल गए और पता चला कि ईक्यू का भी इतना कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो काफी रिसर्च के बाद पता चला, इस विषय पर मैं पिछले 10-15 साल से रिसर्च कर रही हूँ कि सारे इश्यूज का फाउंडेशन जो है वो है स्पिरिचुअलिटी। आप अगर आपका अगर स्पिरिचुअल कोशेंट अगर हाई है, तो आप जो भी लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो आपको आप स्किलफुली और इफेक्टिवली उसे हैंडल कर पाते हो। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। लोग डर जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हमें ऑरेंज कपड़े पहन के साधु या साध्वी बन के हिमालय में जाके तप करना पड़ेगा। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। आप जहाँ रह रहे हो, आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है, उसी में आप कैसे बेटर डील कर सकते हो लाइफ सिचुएशंस, उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। Awesome. Fantastic. I think that's exactly what the audience need to hear. And hence this session is important. दोस्तों, एक एक मिनट को काउंट करिएगा, नोट करिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, because as I said, Leena R. Prabhu is gonna take you on an interesting spiritual journey. From here on, Leena, I take the back seat. Grab my pen and diary to take notes. I am looking forward to learn from you, Leena. Over to you. Thank you very much, Nitin. Right. So, hi, audience. It's a pleasure to be speaking with you. Like Nitin introduced me, I'm Leena Prabhu, Pradnya strategist, spiritual and mental health coach, Amazon #1 best-selling author. उसके आगे मैं भी I'm a certified past life regression therapist, certified animal telepathic communicator. एक जो जब भी मैं अपना कॉलेज कर रही थी, मास्टर ऑफ एजुकेशन कर रही थी, उसके बाद मैं इंडिया में वापस आ गई 1990 में, और तभी मैंने अपना बिजनेस प्रैक्टिस चालू करी। तो जो क्लाइंट्स मेरे साथ आते थे, तभी वो जो भी मुझे कॉलेज में सिखाया था वो मैं उनको सिखाती थी, उनको उनके जो चैलेंजेस हैं लाइफ के वो डील करने के लिए हेल्प करती थी। दे वुड गेट रिलीफ, फिर जाते थे, फिर और कुछ प्रॉब्लम आता था लाइफ में, तो वो वापस मेरे पास आते थे कि ये कैसे, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो कुछ वक्त के बाद पता चला कि जो भी ये टेक्निक्स है, जो भी ये हमें सिखाया गया है, वो अपने को हमको पूरा लाइफ होलिस्टिकली डील करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे। तो उसके बाद मैंने अभी 10-15 साल रिसर्च किया ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ लाइफ, एंड उसमें से पता चला कि आपके एक लाइफ का एक फ्लो होता है, आपका एक फॉर्मूला ऑफ लाइफ होता है। अगर आप अपने फॉर्मूला ऑफ लाइफ को समझते हो, जानते हो और उसे इनकॉर्पोरेट करते हो, तो जो भी आपके जो एक्शंस है, जो थॉट्स है, जो विचार है, वो अगर अलाइन करते हो आपके फ्लो ऑफ लाइफ से, तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, मगर आप उसे स्किलफुली और इफेक्टिवली डील करने के लिए हेल्प हो जाता है। तो वो मेथोडोलॉजी का नाम है मेस्क्यू मेथोडोलॉजी। आज देश विदेश में ये मेथोडोलॉजी जानी मानी है, ओवरसीज से बुलावा आता है कि हमें ये मेस्क्यू मेथोडोलॉजी सिखाइए। तो इसमें क्या है, ये मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कोशेंट की बात होती है इस प्रोग्राम में। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, जैसे मैंने कहा, यू डोंट नीड टू अबैंडन योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम धाम छोड़ के आपको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे हो, जिस लाइफ में जी रहे हो, उसी को बेटर कैसे डील किया जाए। तो एक आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। तो एक तो बात ये है, आप समझ लीजिए कि हम सब है स्पिरिचुअल है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम स्पिरिचुअल है। मे बी सम ऑफ अस डोंट बिलीव कि गॉड है कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मगर कुछ ना कुछ बिलीव तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो मानते ही है हम सब लोग। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता ही है, मगर उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, उसको डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे पता चला कि स्पिरिचुअलिटी इज द फाउंडेशन। आपके लाइफ में अगर आपका स्पिरिचुअल कोशेंट हाई है, मे बी आप अभी आपका मे बी 1 स्केल पे होगा स्पिरिचुअल कोशेंट, और अगर आप साधना करके या जो भी प्रैक्टिसेस करके आप 1 से लेके 5-10 तक लेके जाते हो, तो आपका स्पिरिचुअल कोशेंट हाई बन जाता है। ओके, तो अगर आप हाई बनते हो आपका स्पिरिचुअल कोशेंट, तो जो भी उतार चढ़ाव आपके लाइफ में है वो स्किलफुली हैंडल कर सकते हैं आप, और वो इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। जो भी आपके
मतलब जो ब्लॉक्स है उसे वो निकाल के आपकी लाइफ काफी हद तक स्मूथ हो सकती है। तो इसके लिए एक वन पॉइंट एजेंडा, मतलब आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से बात करना चाहूंगी। और आप विषय का दूसरा पार्ट ये है कि हाउ डू आई कनेक्ट विद गॉड, तो वो मैं बाद में ले लूंगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो उसके लिए आपको वन पॉइंट ही करने का है, बस वेरी सिंपल थिंग, एंड दैट इज टू वर्क ऑन एक्टिवेटिंग योर फुल पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्टिवेटिंग योर फुल पोटेंशियल? तो देखा जाएगा कि जो ह्यूमन रेस है, वी आर यूटिलाइजिंग ओनली 10% ऑफ आवर पोटेंशियल। ओके, 10%। और सारे विश्व में सिर्फ एक ही जीव है जो अपना 20% पोटेंशियल यूटिलाइज कर रहा है, और वो है एक डॉल्फिन। तो डॉल्फिन एक जीव है जो समुद्र में रहता है, और उसने अपना 20% पोटेंशियल एक्टिवेट किया है। तो उसमें एबिलिटी क्या हुई है डॉल्फिन की, कि अगर ये इस शोर पे है वो डॉल्फिन, तो दुनिया के उस शोर पे जो दूसरा डॉल्फिन, दूसरा बंदा रहेगा, उसको वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करके, बातचीत करके जो भी उनको करना है, नहीं करना है, वो कर पाता है। तो ओनली 20% इज एक्टिवेटेड, ये कर सकता है। तो आप सोचिए, अगर आप जिस भी मोड पे है लाइफ में, वेर एवर यू आर, आप समझिए कि आपका सिर्फ 10% पोटेंशियल एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप 1% भी ज्यादा उसको एक्टिवेट करते हो, तो आपके लाइफ में कितना बदल आएगा, उसके बारे में सोचिए। तो एक विचार आता है मन में कि आप क्या सोचते हो कि आपका पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज योर फुल पोटेंशियल? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब भी शाहरुख खान जी आए थे मुंबई में 30 साल पहले, तो उन्होंने ठान ली कि उनको कॉन्फिडेंस था कि उनके लाइफ में कि वो बॉलीवुड पे छा जाएंगे। That was his confidence, that was his, he knew what his potential is work wise। तो 30 साल में उन्होंने कर दिखाया, राइट? तो आप क्विकली, आप जो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या आपके बुक में या कहीं पे भी लिख दीजिए कि आपको क्या लगता है आपका फुल पोटेंशियल क्या है। Just take 10 seconds and quickly write down in the chat box or in the comment section, या आपके बुक में कहीं पे भी लिख दीजिए आपको क्या लगता है आपका फुल पोटेंशियल क्या है, कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या बिजनेस में 1000 करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं, या अपने बच्चे की परवरिश ऐसे तरह कर सकते हैं, या आपका पोटेंशियल पता नहीं हिमालय की चोटी तक पहुंचने का है, या छोटी छोटी चीजों में जो भी, वॉट एवर यू फील इज योर फुल पोटेंशियल, जस्ट राइट इट डाउन। एंड दिस इज द बेंचमार्क आप अपने लिए ले सकते हैं कि आपका ये पोटेंशियल ये है, जो आपने 13 अगस्त 2020 को एक लिख दिया, पेपर पे लिख दिया कि दिस इज माई ट्रू पोटेंशियल। ओके, सो नाउ दैट यू हैव डन दैट, इसके आगे बढ़ते हैं कि इंसान का ट्रू पोटेंशियल क्या हो सकता है। हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक जीव जो है, हम ह्यूमंस जो है, वी आर ऑल बोर्न विथ माइक्रोचिप। एक माइक्रोचिप हमारे अंदर एम्बेडेड है, जिसमें हमारा ट्रू पोटेंशियल, मतलब 100% पोटेंशियल हमें इम्बेड करके हमें इस पृथ्वी पे भेजा गया है। ओके, और सोचिए हम 10% का ही यूज कर रहे हैं वो माइक्रोचिप का पोटेंशियल, तो आप सोचिए कि 1% इंक्रीज करें तो क्या हो सकता है। हाउ टू एक्टिवेट योर फुल पोटेंशियल जानने से पहले आपको समझना चाहिए कि आपका फुल पोटेंशियल है क्या, isn't it? What is your full potential? So full potential is, let me just jot it down step by step. Your full potential is to have control over your mind. आपके माइंड का, आपके दिमाग पे आप फुल कंट्रोल पा सकते हो, खुद पा सकते हो, या कहीं से सीख सकते हो, मगर आप में वो पोटेंशियल है कि यू कैन हार्नेस द पावर एंड द एनर्जी ऑफ योर माइंड। तो आप जानते हैं, जैसे माइंड सेट किया कि आज इस शो पे आने का है,
तो आप आ गए। माइंड सेट किया कि आज खाना बनाने का है, तो आप आ गए। माइंड सेट किया कि जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आप ओवरकम कर सकते हो, तो आप माइंड माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे व्हाट इज द मोस्ट, इज इमोशन इम्पॉर्टेंट और इज द माइंड इम्पॉर्टेंट, है ना? तो द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अभी उसको जो समेट सकते हो, जो यहाँ वहाँ चलता रहता है, जो दिमाग चलता रहता है, उसको आप हार्नेस कर सकते हो और उसको चैनलाइज कर सकते हो, तो आपकी पूरी लाइफ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। दैट इज योर पोटेंशियल। सेकेंडली, योर पोटेंशियल इज टू हार्नेस द पावर ऑफ योर इमोशंस। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी इमोशनल, एम्पैथ्स होते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अनइमोशनल, एकदम डिटैच रहते हैं। तो इस दोनों के बीच में आपका एक बैलेंस होना चाहिए। तो आप में वो क्षमता है कि आप वो आपका इमोशनल क्वोशंट जो है वो एक बैलेंस पे आके रखे, ताकि आप ना ही बात बात पे रोते बैठे या ना ही बात बात पे लोगों को रुलाए, ओके, इमोशनली डिटैच होके। सो दैट इज योर ट्रू पोटेंशियल। नाउ आपका थर्ड पोटेंशियल क्या है कि यू कैन हार्नेस एंड एक्टिवेट योर स्पिरिचुअल कोशंट। स्पिरिचुअल कोशंट काफी वास्ट एंड वाइड सब्जेक्ट है, ओके, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फिर कभी। आप उसे हार्नेस कर सकते हैं। फिर आप में फोर्थ पोटेंशियल क्या है? आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, जैसे रिलेशनशिप में देयर इज कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या कोई कितने सारे लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में होते हैं, और इन लोगों को पता नहीं चलता कि क्या करें, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस। तो आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप में वो पोटेंशियल है कि ये सिचुएशन को आप स्किलफुली और इफेक्टिवली डील करके उसमें से बाहर निकल आए। तो रिलेशनशिप रखनी है ना रखनी है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू कैन मेक योरसेल्फ सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आप इस चीज में से निकल सकते हो। और स्ट्रॉन्ग मतलब ये बात नहीं कि आप मतलब हेड स्ट्रॉन्ग बने कि नहीं मुझे आज यहाँ पे बैठना है तो यहीं पे बैठना है, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स। वो स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ। जो स्ट्रेंथ की बात मैं कर रही हूँ, वो जो आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट जो है वो जब बढ़ेगा, वो जो इनर स्ट्रेंथ जो है ये स्पिरिचुअल क्वोशंट की वजह से, वो आपको इनर स्ट्रेंथ देगी टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस इन योर लाइफ। फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या कैपेसिटी है आपका, आपका पोटेंशियल क्या है? आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, यू कैन डू इट। आप सेल्फ एस्टीम अपना बढ़ा सकते हो, यू कैन डू इट। आप आपको जो सीखना है कि सपोजिंग आप सीए बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं या फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में आप करना चाहते हैं, you have the potential to do it, okay, you can do it, you don't have to worry about it। एक बार आपको जो आपका फ्लो ऑफ लाइफ समझ में आएगा, जो आपका जो लाइफ में जो लिखा गया है और कैसे लिखा गया है, वो अगर आपको समझ में आएगा, तो यू कैन डू वॉट एवर यू नीड टू डू। फिर आगे की बात करते हैं। अभी ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ा के, पीपल थिंक दैट जो हमारे योगीज ने किया था, जो फॉर एग्जाम्पल सम पीपल माइट थिंक दिस इज वियर्ड, बट दिस इज नॉट वियर्ड, दिस इज अ रियलिटी। जो योगीज ने किया था, वो ट्रांसम्यूट करते थे अपने आप को, एक जगह एक जगह रह के भी they used to be seen by other different people all over the world if they wanted to be seen. So that is also the potential that we have inside us. We have the potential to look into our past lives. आप अपने past life में जाके आपके जो भी situations थे, वो हालात थे, उनको देख के, उनको सुलझा के, उनकी एनर्जीज जो ब्लॉक्ड एनर्जीज है उसको रिलीज करके आपके लाइफ, अभी के लाइफ में सुधार आ सकता है, आप ला सकते हैं। तो वो पोटेंशियल आपके बीच में है, यू हैव इट विद इन यू। फिर you also have the capacity to communicate telepathically with other human beings, with other animals। तो ये सब चीजें मुझे मालूम नहीं थी कि मेरे में भी है, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ साइकोलॉजी में, वो मेस्क्यू मेथोडोलॉजी लेके। तो पूरा मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा, एंड पूरी फैमिली भी डॉक्टर्स थी।
तो हार्डकोर जो जो दिखता है वही है, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में से हूँ। मगर कुछ 5.5 साल से ऐसे एक्सपीरियंसेस आने लग गए लाइफ में। इनफैक्ट द माय लाइफ लेड मी थ्रू दीज टू दीज एक्सपीरियंसेस to communicate with departed souls. So my father and my mother have departed in the last 5.5 years. तो उनके जाने के बाद जैसे वो जो एक्टिवेट हो गया, उनकी उनके साथ जो कम्युनिकेट करने की जो इच्छा थी, तो वो दरवाजे एकदम खुल गए मेरे लिए। एंड दैट वाज अ मतलब शॉकिंग इंसिडेंस फॉर मी कि ये भी हो सकता है, ये कैसे हुआ। एंड आई एम एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विथ माय पेरेंट्स। फिर पता चला कि आई एम नॉट जस्ट कम्युनिकेटिंग विथ पेरेंट्स बट आई एम कम्युनिकेटिंग विथ माय पेट्स। और मिनी मेरे पेट्स है। वो वो जब ही कम्युनिकेशन चैनल खुल गया तो नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विथ बर्ड्स। मेरे घर में रोज स्क्विरल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, कौवे आते हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती है। सो ऑल दीज आर वेरी न्यू एक्सपीरियंसेस फॉर मी। मगर एक बार जब भी वो जो दरवाजा खुल गया, या जो माइंड के जो दरवाजे बंद थे वो एक बार खुल गए, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ 5 डायमेंशंस में लाइफ दिखने लग गई। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ 1 डायमेंशन में लाइफ देख रहे हैं। We are looking at our life in only 1 dimension, and that is me, myself, and I, isn't it? जो मैं हूँ वही हूँ, और बाकी दुनिया गई तेल लगाने। ज्यादातर लोगों की ऐसी सोच है। मगर आप अगर वो जो डायमेंशन, अब अगर आप अपना ईगो जो है, अब मैंपन जो है, वो आप उसे विलीन कर देते हो, डिसॉल्व कर देते हो, इट इज अ वेरी टफ थिंग टू डू। इट इज एन एब्सोल्यूट, मतलब आपका पूरा ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। जो अभी है, जो जिस साँचे में आप है, जो आपके अभी के संस्कार है, जो आप लेके आए हो अपने पास्ट लाइव्स में से, तो वो पूरे संस्कार को पूरा ब्रेक डाउन करके आपको पूरा अपने आप को नए साँचे में ढालना पड़ेगा। और जब नए साँचे में डालते हैं आप, तो इट इज़ अ मैजिकल जर्नी एंड अ मैजिकल एक्सपीरियंस, जो इतनी सारी डायमेंशंस ओपन अप हो जाती है आपके लिए कि आप सोच नहीं सकते कि अभी तक जो आप की लाइफ चल रही थी, आपको लगेगा कि व्हाट वाज आई डूइंग टिल नाउ, why was I running behind these things, why was I, heartbreak क्यों हो गया, शादी टूट गई या बॉयफ्रेंड छोड़ गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो ऐसे क्यों। उसके ऊपर ही ऐसे समझते हैं कि जो दोज पीपल इन लव, दे थिंक दैट अभी ब्रेकअप हो गया तो मतलब लाइफ ही खत्म हो गई। बट इट इज नॉट सो। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और आप थोड़ा आगे बढ़ो, उसके आगे बढ़ो, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड जिस वजह के लिए आप पैदा हुए हैं, उसका जो पर्पस है ऑफ योर लाइफ, दैट यू कैन activate it, that you can work towards it, that you can evolve into it. और बहुत साल पहले I had met an astrologer. She is an American astrologer. और तभी मैंने उससे पूछा था, मेरे लाइफ में बहुत कंफ्यूजन था, तभी बहुत हार्ट ब्रेक होता था, बहुत बात बात पे मैं मुझे रोना आता था और बस जिंदगी खत्म हो गई ऐसे लगता था। सो आई आस्क्ड हर कि व्हाई एम आई सफरिंग सो मच, व्हाई एम आई सफरिंग सो मच। तो शी सेड कि बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रोंगर। So I asked her कि मुझे strong बन के करना क्या है? What do I have to do and why do I need to become stronger? कि क्या उखाड़ना है मुझे strong बन के? I don't think she was able to answer that question at that time. But उसके बाद जो मेरी journey शुरू हुई कि इस खोज में कि मुझे strong बन के करना क्या है, या what is happening? Why am I suffering so much? तो आपको सुन के एकदम अजीब लगेगा, या I don't know how you are going to react to this, but I'm just sharing this knowledge with you, जो spiritual knowledge जो है कि हम जब भी हमारी आत्मा जो है, जब भी हम पास्ट लाइफ में, पिछले लाइफ में जब भी हम हमारी डेथ हो गई,
तो हमारा जो सोल जो है वो हमारे बॉडी में से निकल के आगे चला गया इन अनदर डायमेंशन, इन अनदर रेल्म। ओके, तो वहां पे हमें एक अकाउंटेंट मिलता है। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ओके, आई एम नॉट जस्ट सेइंग हियर से। तो हमें एक कार्मिक अकाउंटेंट मिलता है जो हमारे माइथोलॉजी में या हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, उसका नाम है चित्रकूट। हमें चित्रकूट मिलता है। तो चित्रकूट को के साथ हमारी हमारी जो रूह है, हमारा सोल है, वो बैठ के एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं कि आपने पिछले लाइफ में क्या पाया, क्या कमाया, क्या अच्छा किया, क्या गवाया, कौन से लेसन्स आपने सीखे, कौन से लेसन्स आपने नहीं सीखे। तो ये सबका अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग होने के बाद फिर आपको लाइफ में क्या लेसन सीखने हैं, ओके, वो आप जॉट डाउन करते हैं। वो जॉट डाउन करने के बाद आपकी जो सोल है, आप डिसाइड करते हैं कि ये लेसन मैं इस सोल के साथ सीखना चाहती हूँ, इस सोल के पास से सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न दिस लेसन फ्रॉम दिस सोल। तो आपका सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर सोल कि जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल आपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, जस्ट टेक इट एज अ स्मॉल एग्जाम्पल। तो यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप एक सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि अभी मैं जन्म लूंगी या लूंगा, तभी आप मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हेल्प करोगे। एंड देन यू टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ। अभी की जो लाइफ है आपके, आपने जन्म लिया है, तो ये सोल दूसरा सोल है, वो कोई भी हो सकता है। वो अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उस रूप में आपके सामने आएगा जब भी आपका टाइम होता है कि टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये बंदा या बंदी आपको इतना नीचे दिखाएंगी, इतना हरास करेगी, इतना आपके पीछे लगेगी, आपका आपका लाइफ एकदम अनबेरेबल करेगी, जब तक आपका वो पॉइंट नहीं आ जाए आपके लाइफ में कि डू और डाई, या अभी मुझे आई हैव टू इंक्रीज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस टू ओवरकम वॉट एवर दिस ट्रॉमा दिस अदर सोल इज इन्फ्लिक्टिंग ऑन मी। एंड दैट इज योर ब्रेक पॉइंट। दैट इज योर ब्रेक पॉइंट विच यू हैव टू लुक। जो आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, why are we facing these problems? Because you have, first of all, you have asked to learn these problems, learn from these problems and evolve your soul। हमारा जो सोल है उसकी एक जर्नी होती है, ओके। तो वो जर्नी पार पड़ने के लिए आपका एक एवोल्यूशन होना चाहिए, सोल का एवोल्यूशन। हम इस वी आर वॉलंटियर टू कम टेक बर्थ इन दिस लाइफ, वी आर वॉलंटियर। और जो भी हमारे जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, वो वी हैव साइंड अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दीज पीपल कि यू आर द वन हु विल बी गिविंग मी, टीचिंग मी दिस लेसन, एंड वेदर गुड और बैड। तो आपका जो कार्मिक डेट है इस इंसान के साथ या इस आत्मा के साथ, तो आप वो कार्मिक डेट नलिफाई करते हैं या रिजॉल्व करते हैं। कार्मिक डेट दोनों टाइप के होते हैं, मतलब गुड कार्मिक डेट एंड बैड कार्मिक डेट। तो अगर गुड कार्मिक डेट की बात करते हैं, तो अगर आपके घर में आपके छत है आपके सर के ऊपर, या आप खाना खा सकते हैं, खा पी सकते हैं, या आप चल सकते हैं, या आप सांस ले सकते हैं, या अपना काम खुद कर सकते हैं, जो भी है आपके लाइफ में अभी, that is your good karma which is working for you, okay, which you are reaping the benefit of your good karma। और जो बैड कर्मा है, जो भी सोल के साथ है बैड कर्मा है, वो आपको उसे रिजॉल्व करना है। और कैसे रिजॉल्व करना है कि ना ही सामने वाले को नीचा दिखा के, या उसको इंसल्ट करके, या उससे के बारे में बुरा भला बोल के, और सोच के भी। ये जो कर्मा जो हमारे अंदर, हमारे सोल के अंदर एम्बेड हो जाता है ना, हमारा नॉट ओनली जस्ट एवरी एक्शन बट एवरी थॉट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कर्मा। तो आप क्या सोचते हो, और ये विचार जो है, ये जो थॉट है, उसकी भी एक एनर्जी होती है।
एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग। इवन जो ये टेबल है या आपका लैपटॉप है या मोबाइल जो हाथ में रखा है आपने, या या जो ये पेंसिल है, जो भी है, लकड़ा है, लकड़ा, सब में एनर्जी होती है। आपने शायद स्कूल में सीखा होगा कि इवन द टेबल वुड हैज मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते रहते हैं। तो वो वाइब्रेशन इज फॉर्मिंग एन एनर्जी। जो एनर्जी रहती है, तो each one of us is vibrating at certain energy level. Okay, so we have the potential of vibrating at a higher level. आपका आप अगर हायर लेवल का मतलब क्या, कब आपको कभी पता चलेगा कि आप लोअर लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपको थकान होगी, आपको डिप्रेशन होगा, आपको फटीग होगा, आपका लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी तरह हार मानोगे। तो तभी आपको पता चलना चाहिए कि आप लो वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो आपको कुछ चीजें करनी होगी जिसकी वजह से आपका वाइब्रेशन आप बढ़ा सकते हो। और वो वेरी सिंपल थिंग्स आर देयर। First of all, you have to start working towards activating your full potential. That is your first thing. और आपकी second thing is, जब भी आप कोशिश करते हो to activate your full potential, तभी आप अंदर जाते हो। Look within. You look within. Right now we are all looking outside कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मेरा ये नहीं हो गया, मेरा सर फूट गया, मेरा बिजनेस तबाह हो गया, वॉट एवर इट इज। और उसकी वजह से ये सब हो गया, उसकी वजह से ये सब हो गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, आई वॉज बीइंग द नाइस एंड हैप्पी पर्सन, बट सामने वाले की वजह से मेरा सब तबाह हो गया। सो वी आर फोकस्ड आउटसाइड आवर लाइफ। बट इफ यू वांट टू मीट गॉड, कोट अनकोट गॉड, इफ यू वांट टू मीट गॉड, गॉड क्या है पहले आप उसको डिफाइन कीजिए। गॉड ये है, मेरी मान्यता है, गॉड इज दिस सुपर पावर, is this super energy which has made all these things around us, within us, जिसकी वजह से ये काल चक्र एकदम जैसे टकाटक 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 जैसे एक प्रोसेस, स्मूथ फ्लोइंग प्रोसेस बना दिया है। ये जो सुपर पावर है, जो ये जो एनर्जी है, इमेजिन लाइक हम लोग, हाउ वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स एंड हाउ आवर चिल्ड्रन लुक लाइक अस। एक सीड में से बन गया, एक जीव बन गया, एंड इट इज परफेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज परफेक्ट। सो हाउ दिस, सो whoever has made this operating system, उसी को तो हम गॉड कहते हैं, राइट? सो दैट इज दिस सुपर पावर, दिस एनर्जी। तो जब भी आप अंदर जाते हो, अपने अंदर जाते हो, when you work towards activating your full potential, the vision, the view is fabulous. When you start looking inside, when you start looking at your body, जैसे आप meditate करते हो, जो आप साधना करते हैं, करना पड़ता है to look within. So you can see your organs, you can visualize your organs. हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, okay? 72,000 nadis are there, and there are 114 chakras. Chakras हमारे अंदर है, and all these are not visible. They are on a sukshma plane, they are on an invisible plane, they are in an ethereal plane, जो हमें दिखाई नहीं देती मगर हम महसूस कर सकते हैं। और जब आप अंदर जाते हो अपने आप को देखने के लिए, तभी आप इनको लेयर बाय लेयर बाय लेयर आप इनको खोज सकते हो, आप उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो, आप अपना ऑरा जो है वो ठीक कर सकते हो। जो ऑरा में जो छेद है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिविटी अपने अंदर आती है, वो ऑरा को हम क्लोज कर सकते हो। और जैसे आपका जो जो अपने फिजिकल बॉडी को हील कर सकते हो, यू हैव द कैपेसिटी टू हील योरसेल्फ। वी डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी मेडिकेशन। ये जो जो
एलोपैथिक मेडिसिन बनाने वाले हैं ना, उन्होंने हमको ये कर दिया कि डिपेंडेंट कर दिया उनकी गोलियों के ऊपर, कि दैट वी आर नॉट एबल टू टैप विद इन आवरसेल्व्स। आमतौर पे हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनी मेडिकेशन। अपनी फिजिकल बॉडी में है वो माइक्रोचिप which can heal us. So you just have to know how to utilize that power within you. Okay, so you can heal yourself. तो जैसे अभी आप तो हील कैसे करना है? डिजीज जब भी सपोजिंग हमारे अंदर कुछ आइडेंटिफाई हो गया कि कैंसर या हार्ट ब्लॉक या जो भी कुछ हमारे अंदर आइडेंटिफाई हो गया, ओके, the physical body is the last place where disease manifests itself. Understand this. Your physical body is the last place where the disease manifests itself. The first place is in your manomaya kosha, is in the aura which is surrounding you, something which can't be seen. मनोमय आपके प्राणमाया कोशा में वो पहले मैनिफेस्ट होता है। और वो कभी होता है जब भी आप वीक हो, अंदर से वीक हो, जब भी आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, जब भी आपका मेस्क्यू वीक होता है। मेस्क्यू इज व्हाट? मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कोशेंट। तो जब भी आपका मेस्क्यू लो होता है, तभी ये सब जो डिजीजेस होते हैं या जो अदर एनर्जीज होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, वो हमारे अंदर घुस जाते हैं एंड सीप करते 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 हमारे फिजिकल बॉडी में वो डिजीज के तौर पे वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको डिजीज फ्री रहना है तो यू हैव द इनबिल्ट पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन योर प्राणमाया एंड योर मनोमाया कोशा। और ये कब कर सकते हैं आप? जब आपका स्पिरिचुअल कोशेंट हाई होता है। इट इज अ वेरी डीप एंड वेरी फैसिनेटिंग स्टडी। ओके, आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन मतलब यहाँ बैठ के यू कैन वॉन्डर, योर सोल कैन वॉन्डर अराउंड द मल्टी डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्स। It's not I'm not saying it just to impress you or to shock you, but this is what you can do. हमारे योगी लोगों ने क्या किया? उन्होंने तप किया and they went inside themselves, they went within themselves. हमारे योगी लोगों ने इतना तप किया, they connected with the super consciousness. दे कनेक्टेड विद द सुपर कॉन्शियसनेस। और जो भी इंफॉर्मेशन है सटल बॉडीज की या अपने चक्रास की, जो चक्रा हम देख नहीं सकते, ये उसको टच नहीं कर सकते, तो उस चक्रा साथ जो चक्रा है हमारे मेन चक्रास जो है, उनका कलर कैसे पता चला, उनके उसके अंदर डिजाइन कैसे, वो कैसे पता चली? वो चक्रा जैसे रूट चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू फील सिक्योर। जो भी आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, उसको प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे पता चला? किसको पता चला? अभी तो हम जस्ट सीख रहे हैं, मगर इसको ये नॉलेज को किसने हार्नेस किया या और हमारे तक कैसे किसने पहुंचाया? तो ये हमारे जो योगीज है, जो योगिनीज है, जो सालों तक तप करते रहते हैं, कर चुके हैं हिमालयस में जाके, तो उन्होंने अपने शरीर को अपनी लेबोरेटरी बनाया। दे मेड देयर बॉडी अ लेबोरेटरी टू एक्सपेरिमेंट विद वेरियस थिंग्स विच आर नॉट विजिबल। तो एक्सपेरिमेंट करके अभी कितने सारे योगीज जिन्होंने सालों साल खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, so how are they surviving? And they are not just surviving, they are living. तो वो जो सूर्य की ऊर्जा है, उसके ऊपर वो जीने का तरीका उन्होंने खोज लिया और हमें सिखा रहे हैं। मगर हम लोग को खाना ही कितना खाना है। वी लव और एंजॉय आवर फूड सो मच दैट मोह और माया के बंधन में हम लोग अटके हुए हैं।
So once you learn to detach yourself, मेरा भी process चल रहा है. It's not that I know everything, because it's a work in progress. Your spiritual quotient is your work in progress. The main thing that you need to know and need to do is that you need to keep on working on yourself. You need to keep on activating your potential. आज एक मात्रा से बढ़ गया पोटेंशियल, तो दूसरे मात्रा तक जाओ, तीसरे मात्रा तक जाओ. और जैसे ही आपके जो ये डोर्स खुल जाते हैं ना, the other dimensions, everything looks, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो विचार है, आपके जो पेचीदा लाइफ सिचुएशंस में से जा रहे हैं आप, all this falls into the sidewalk. All this does not have that kind of a meaning or that kind of a hold in your life that it used to have, because now you have learned, or you will learn to connect with from here. यहाँ से होता है कनेक्शन आपका with the cosmic superpower. सहस्रारा चक्र यहाँ पे है. तो यहाँ का कनेक्ट, या ये आपका जो चैनल खुल जाता है, so you can connect with the cosmic superpower and you can channelize this knowledge into your being. वही किया ना वो हमारे योगी लोगों ने. They channelize this knowledge into their being, and somehow they have transferred it down to us over here. For us, all we have to do is learn. मगर हम अपनी मोह माया के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी जैसे लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है. मगर ये ऐसे नहीं है कि वो अलग से है, हमसे स्पिरिचुअलिटी अलग से है. इट इज विद इन अस. वी जस्ट हैव टू हैव the will to strengthen our spiritual quotient. फिर पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं. आई एम अ सर्टिफाइड PLR थेरेपिस्ट. तो जब भी आप पहली बार मैं जब भी पास्ट लाइफ किया, तभी आई वाज लाइक, व्हाट वाज दिस रियल? जो मैंने देखा वो क्या सच था, क्या सही था? तो मगर उसमें से जो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जो बेनिफिट्स मुझे दिखाई दिए, दैट वाज इनक्रेडिबल. दैट वाज इनक्रेडिबल कि जैसे मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसे मैं मेरी बॉडी में ऐसे हील कर सकती हूँ फ्रॉम एनी क्रॉनिक पेन जो था. दैट यू कैन हील योरसेल्फ. और अभी के जो हमारे फैमिली सिचुएशंस है, या पर्सनल सिचुएशंस है, या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है हमारे लाइफ में, ब्लॉक, द मेन थिंग दैट वरीज अस इज द फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, कि पैसा क्यों नहीं आता है. यू नो, we want abundance, and that's fine. That is absolutely fine. Okay, that you want to be financially abundant. तो financial abundance क्यों है, क्यों नहीं है? Through a past life regression therapy session, you can go back into that life of yours जहाँ पे आपका कुछ ब्लॉक है regarding your finances, inhibitions है, क्या कुछ तो हुआ है वो लाइफ में जिसकी वजह से आपके यहाँ आपने कुछ शायद शपथ ली होगी, या कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट अभी आपके लाइफ में अभी है. So through a PLR session to remove your financial blockages, आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के जो blocked energies है उसको release करते हैं. Okay, through certain practices, certain instructions which I give. तो उसको जब भी आप रिलीज करते हो तो वो एनर्जी जो ब्लॉक हुई रहती है वो डिसिपेट हो जाती है, और उसका इफेक्ट, उसका मैनिफेस्टेशन ये लाइफ में भी होता है, ये लाइफ में जरूर होता है. द ओनली थिंग इज यू डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन. क्योंकि व्हेन आई वर्क विथ यू एज आई एम द फैसिलिटेटर, और आप जो है, so I will facilitate you to remove and release those energies, and you will be there willingly who wanting to release those energies. So there are two of us participating, but there is a third participant also in this whole process, and that is the universe. तो जब भी हमने हमारा काम किया तो
उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है फॉर द यूनिवर्स टू अपना जो जादू जो भी है वो चलाने के लिए, जो जिस वजह से वो चलता है, और जो इतने लाइव्स की जो अपहीवल्स है रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, वो रिलीज करते 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 शायद दूसरे दिन भी हो सकता है या शायद कुछ महीने लग सकते हैं, मगर आपका वो जो परिवर्तन होते रहता है लाइफ में. सो दिस इज अ फैसिनेटिंग जर्नी स्पिरिचुअल क्वोशंट. और आप सिर्फ स्पिरिचुअल क्वोशंट नहीं पे फोकस ना करें, साइड बाय साइड आप अपना मेंटल क्वोशंट और इमोशनल क्वोशंट भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं. ये आप में पोटेंशियल है टू स्ट्रेंथन योर मेंटल एंड स्पिरिचुअल इमोशनल क्वोशंट. एंड जो वीक रहते हैं, जो वी आर ऑल बोर्न एट सम लेवल ऑफ आवर क्वोशंट. जैसे क्वोशंट मतलब क्या, एक स्केल रहता है फ्रॉम 1 to 10 फॉर एग्जाम्पल. तो अभी आप मेंटल क्वोशंट पे आपका स्केल, इफ यू आर ऑन द स्केल ऑफ 1, so by doing certain things, certain practices, educating yourself, certain जो डेली रूटीन में आप जो चेंज लाते हैं, तो आपका फ्रॉम 1 to 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ते रहता है स्पिरिचुअल क्वोशंट. एंड 10, अगर आप समझो 10 पे पहुंच गए, आपके आपके इमोशनल या मेंटल या स्पिरिचुअल क्वोशंट 10 पे पहुंच गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने मतलब जो भी मिलना था मिल गया, जो भी करना था कर लिया, दैट यू हैव रीच्ड द टॉप. नो, because 10 is a barometer that we humans have put for ourselves. But in the spiritual world, where you are connected with the cosmic universe, वहाँ की जो एनर्जी आप में जो अंदर है, तो वहाँ का पोटेंशियल इज अनलिमिटेड. इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई हेल्प माई क्लाइंट्स बी व्हाट दे कैन बी. ज्यादातर लोगों को चाहिए होता है कि आई वांट टू बी व्हाट आई वांट टू बी. लाइक आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ beautician, I want to be an engineer, I want to be a billionaire. This is like I want to be what you have set for yourself. My belief is that is limiting you. I'm encouraging you to be what you can be, because what you can be, based on the microchip of your potential which is embedded in you, what you can be is unlimited. आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि आप what you can be. तो उसका आप ऑब्जेक्टिव रखिए. कीप योर गोल set on what you can be and not what you want to be, because your want is very limited. Your want is very limited if you compare it with what you can be. Okay, right. तो आगे बढ़ते हैं. How much more time do I have? Can somebody tell me? How much more time do I have? That I would like to know from the audience कि ये आपको, are you understanding what I'm saying? Yeah, is there is it gelling with you? Is it too far off? Is it too unthinkable? friends, let us know in the chat box. I mean, we've been hearing Lena for about 40-45 minutes now. How was it so far? Were you able to connect? It's not easy. It's not, I mean, although she tried to make it so easy for you to understand, but in such a simple language. But how many of you were like lost and went too deep with her in this entire journey that she took all of us to, and you were just flowing with the flow that Lena created here in the session? How many of you experienced that? I experienced that, honestly speaking. I was deep in my thoughts when Lena was speaking. Lena, unfortunately, time to kam hai. Ye to main zarur accept karunga. We've Okay. almost 8 p.m.
But whatever you shared, it whatever it that you shared, it actually took me to an interesting journey, a deep journey on these ideas that you shared with us, and it was amazing. And you can see the chat box right now. I mean, Yes. just feel this energy. I can feel it. Look at that. I mean, look at what Sarita said. Really, I forgot myself. She said, I forgot myself. Displayed on the screen. I want to do it. I mean, really, she said, I forgot it. Yeah. And Ridhima asked me if it's almost time. Should I just drop a message to Leena that it's time? And I was like, chalne de, chalne de. I mean, oh, honestly, and I'm being very humble and honest here. I said, chalne de. I mean, I'm flowing with the flow. It was amazing. This is the beauty of this topic, spirituality, friends. Unfortunately, समय की कमी है लीना. But wait, नितिन, ये spirituality का subject बहुत vast है. हाँ. बहुत vast है. I can't do it in 1 hour, but I would True. like to invite your participants. तो जो जिस MESQ methodology की मैं बात कर रही हूँ, जी. on your show, on your program, first जी. time ever, जी. all those who are really interested, into deep diving into themselves, into taking the first step to activate their full potential, जी. I am inviting them to do this program with me for free, absolutely free. Wow. And I would request Ridhima to share the Telegram link over here with all our audience. जो भी ये मेरे से सीखना चाहते हैं, there will be a very serious study on this. मतलब I don't do it very easily. तो जो भी एकदम seriously interested है, 9th September से मेरा 1 हफ्ते का program चालू हो रहा है. Okay, and this is absolutely free only for your audience. And Ridhima, can you please share the link? So all Please. those who want to learn this MESQ, yes, the Telegram link, आप please यहाँ पे click करें और इसके program के details मैं आपको अगले हफ्ते में share करूँगी. This is an absolute free program, a 7-day program, and mind you, this is this for those who are my clients. They do. It's a bunch. It's not a very it is not financially. It is not a very क्या बोलते हैं उसको? Nitin, help me out. They have paid a packet. They have paid a packet for this program to learn it from me, to get coached from me. But for your audience, I'm going to do it for free. Wow. Okay. Wow. So all those who want to join from 9th September, please click on the link and the details will be shared with you as the time comes. And only those who are really interested in learning, only those people click, because this is a very intense program. But once you do it, my God, your transformation will be like phenomenal. Amazing. This is what it is, friends. There you go, Leena R. Prabhu. और आप सब जो ये कह रहे हैं कि आप जो ऑल अग्री कर रहे हैं, देखिए so many comments. सर पता नहीं चला टाइम कहां गया. मत रोकिए, चलने दे. Continue, ma'am. We want to listen to you more. Please continue. We want to hear more from you. Here is an opportunity for you. Here is an opportunity for you because it indeed is a very deep and a vast subject, a very deep and a vast topic. मैं नहीं चाहता कि we cover it in haste. We cover it. ऐसा थोड़ी है. समय लगेगा. ये एक जर्नी है. ये एक सफर है जिसे आपको तय करना पड़ेगा with somebody like Leena R. Prabhu. दोस्तों, if I know somebody who can help you go deep into this subject, you have her on screen with me. If I know somebody, that's her. Link is right there in the chat box, and we all should be very thankful to her. I am, for making this available for free. It is not. So try getting it outside of this for free. No way. Because this is for people who are ready, and you all are ready because you all of you are already filtered out yourself from the people who might have registered for the summit but are not here. All of you are turning up every single day.
and hence you already been filtered out. So maybe we can remove the price tag and make this available to you for free. The link is right there in the chat box for all of you. Just scroll up in the chat wherever you are watching this program on YouTube, Facebook, wherever. It's available there. Scroll up and you will be able to see it, right? Wow, Lina, अब मैं क्या कहूँ? अब मैं क्या कहूँ? I was in awe of these ideas that you were sharing, और मैंने फिर कहा, मैं फिर कहता हूँ कि मैं तो बह रहा था आपके साथ. आप बहा रहे थे और मैं बह रहा था, और मैं बस, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ लिखूं या बस सुनता रहूं. And it was very soothing to the ears. Yes or no? Everybody, let me know with the chat box. It was soothing to the ears. It was your interaction was pretty soothing. It appealed straight away. ये physical mental boundaries को हटा के, it was just touching the heart. And I was listening to you patiently. और मैंने बताया ना, मैंने कहा तुम मत रो, तू चलने दे यार. Lina, you are a magician, and it reflects the way you communicate. It reflects. So thank you so much, Lina. It Yes. means a lot. Thank you very much, Nitin, for having me over here. And those who are not able to join in at this time, you can still click on the link, and maybe next batch के लिए मैं आपको ले सकती हूँ. And those who want to be in touch with me can email भेज सकते हैं, contact@pathstopradnya.com, या मेरा नाम Google search कीजिए. You will find me at pathstopradnya.com. And there are contact details over there. You can send me a WhatsApp message, you can send me an email, and I will be happy to help you out in whichever way I can. Wow. Thank you very much, Nitin. लीना, सीरियसली आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग सेशन, यूनिक सेशन आई वुड से, और आपने इसका डायमेंशन बिल्कुल अलग सेट किया, और अलग ही जर्नी पर आप हम सबको लेकर गए. मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, कोई क्वेश्चन है नहीं दिमाग में, बिकॉज मैं बस, as I said, मैं तो अग्री करता जा रहा था. मैं rather than with a question mind, I was just listening to you with this mindset. Yes, that's true. That's true. I agree with that. That's true. I agree with that. Then no questions came in my mind. So I guess for the first time in this summit, no questions, my lord. Now you might be just eager to further your journey on your path to Pradnya. No doubt about that, Lina. No doubt about that. Don't be surprised if I'm one of the participants in this 9 September program. You're most welcome. You're most welcome. Thank you very much, Lina. Friends, all of us, let's thank her. Type in thank you in the chat box. That was Lina R. Prabhu for you, live and exclusive on this subject, on this topic, spirituality in the Superpower Success Summit.